Welcome back, students. This is the class 10th of mathematics, and today we will start new exercise, exercise 5.3. New exercise, and this is the exercise 5.3. And ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 5.3, इसका आप लोग सबसे पहले ना सेल्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आप लोग सेल्फ करोगे, वो मैं नहीं कराऊंगा. बोथ क्वेश्चंस यू कैन डू दैट एंड दैट विल बी योर होमवर्क. सो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिस्टम है इसमें, इसको समझना जरूरी है. थर्ड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन एन एपी find following. In an AP find following. यानी अपने पास है ना स्टूडेंट्स एक एपी है और उस एपी के अंदर बहुत सारे अपने पास क्वेश्चन है और उसमें ना जो फॉलोइंग जो अपने को गिवन है और साथ में अपने को कुछ एक टर्म्स वगैरह पूछिए इसके अंदर. सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50. Find N and Sn. Find N and Sn. Students, in this question we have A is equal to 5, यानी A की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है. D जो है वो आपका 3 है. AN यानी कि जो nth टर्म है दैट इज 50 एंड फाइंड n एंड Sn. आपको n और Sn स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड दैट, यानी आपको n भी फाइंड करना है और Sn भी फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ d एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 50. ये अपने पास एक वैल्यूज दे रही है. यू नो द फॉर्मूला, इसका आंसर अपन इस तरीके से करेंगे. an you what is the formula of an? It is the an is equal to a plus n minus 1 d. This is the formula to find the value of an. Here the value of a is equal to 5, n it is we have to find the value of n, so we don't have the value of n. So I will write n as it is. D, what is the value of d? It is the 3. An, the value of an is equal to 50. 5 plus n minus 1 into 3. So students, we can move 5 on left hand side, so we will have 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3. 50 minus 5, it will be equal to 45. n minus 1 multiply by 3. 3 it is in multiply, so we can move on denominator with the 45. so इसको आप यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ आप 3 को डेनोमिनेटर में आप यूज कर सकते हो. 3 1 जा 3 एंड 15 माइनस 1 को इस साइड लेके आओगे, सो वैल्यू ऑफ द n इट इज इक्वल टू 16, यानी कि n की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये कितनी आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी. द वैल्यू ऑफ n इज इट इज इक्वल टू 16. नाउ Sn, टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म वी हैव द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म. Sn it is equal to n. Here we can see that n, the value of n is 16, so I will write here 16 upon 2. 2 into a, first term is 5, so I will write here 5 plus n minus 1, sorry, the value of n it is again 16. 16 minus 1 and common difference d it is given equal to 3, so I will write here 3.
55 8 से मल्टीप्लाई कर देना एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, next question is we have a is equal to 7, a 13 is equal to 35. Find d and s 13. Find d and S13. So this is the question, students. Again we have a is equal to 7, a 13 is equal to 35. Find d and S13. So students, you can see it here. a n की वैल्यू आपको 35 दे रखी है. So students, you have the formula to find the nth term of a given AP. an is equal to a plus n minus 1 d. It is the formula to find the nth term of any given AP. So an is equal to n. The value of n is 13. So I will write here 13. The value of a, it is equal to 7 plus n minus 1, 13 minus 1 into d. What is the d? D is the common difference and we don't have the value of d, so I will write d as it is. Okay, a13 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो कितनी है अपनी 35, so I can write here 35. सेवन को आप इधर लेके आ सकते हो. 35 minus 7, it will be equal to 28. So students, the value of d, it is the value of d, it will be equal to 28 upon 12. कैंसिल हो रहे हैं, ये किससे कैंसिल हो सकते हैं? 3 से, 2 से, 4 से कैंसिल हो सकता है. So students, you can see that the value of d is 7 upon 3. Now we can find S13. वही सेम, Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 d. Sn, n कितना चाहिए आपको यहाँ पे? 13. So I will write here 13. 13 upon 2, 2a, 2 into a, the value of a is 7, so I will write here 7 plus n minus 1, 13 minus 1 into d, the value of d, it is equal to 7 upon 3. As 13 upon 2, 7 to the 14, so I will write here 14 plus 13 minus 1, 12. Students, you can see that you can divide 12 by 13, sorry 3. ये 3 से 12 क्या होगा आपका? कैंसिल हो सकता है. You can cancel that. It will be equal to 4. 4 कैसे होगा? हाँ सही है, 4 ही होगा. And 7 for the 28.
आगे आप लोग कर लेना इसको सोल्व। Okay students, it was the question number second. After doing question number second, we will start question third. Okay, next question friends, it is third question. A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12, find A and S12। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वही सेम तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, A12 आपको क्या दे रखा है 37, तो वही सेम आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओगे। In this formula you will put the value of n, it is equal to 12. A it is not given, so you will write A as it is, and sorry, it is here also 3, and the value of n it is equal to 12, और D it is already given। तो स्टूडेंट्स आप है ना, अच्छा A12 की वैल्यू क्या दे रही है 37, 12 माइनस 1 यानी कि 11, 33 हो जाएगा। इसको इधर लेके आप है ना A की वैल्यू फाइंड कर लो, A की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड आउट द S12, आपको किसकी वैल्यू चाहिए S12। तो वही सेम है तरीका, आप है ना SN वाला फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें अप्लाई करना है। SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और आप लोग इसको सेल्फ कर सकते हो। Okay students, now we will do question number 4. Question number 4. A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and A10, D and A10, ये आपको गिवन। वही सेम तरीका स्टूडेंट्स, A3 की वैल्यू 15 इट इज ऑलरेडी गिवन, सो यू विल राइट हियर फॉर्मूला AN is equal to AN, N की वैल्यू क्या रखनी है आपको 3, सो यू विल राइट हियर 3, A it is not given, so I will write A as it is plus n minus 1, D it is not given, A3 की वैल्यू क्या है 15, so I will write here 15, A plus 2D। तो स्टूडेंट्स ये अपने को गिवन है, इसमें ना इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A and 2D, so this is our equation first। अब देखो आगे अपन इसको सोल्व कर नहीं सकते, सो A और D की जगह आप A और D रख दो, लेकिन अपने वी हैव ऑलरेडी अनदर इक्वेशन S10 is equal to 125, यानी S10 जो है वो आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 125 दे रखा है। सो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड SN सम ऑफ n टर्म। यहाँ आप देख सकते हो S के नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ 10, सो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 10, द वैल्यू ऑफ n इट विल बी इक्वल टू 10, सो n की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 10, हियर आल्सो आई विल राइट 10, टू A it is not given, so I will write here A plus n minus 1, n की वैल्यू क्या है 10 minus 1, D की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो S10 की वैल्यू क्या दे रही है 125, सो आई कैन राइट हियर 125, ये हो जाएगा 5, 2A plus 9D,
10 minus 1 ये क्या हो जाएगा 90। आफ्टर डूइंग दिस स्टूडेंट्स 5 जो मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा 25, तो 25 इट इज इक्वल टू, तो दिस इज ओवर इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अपने पास कितनी इक्वेशन आ गई 2 इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो 2a इधर तो है अपने पास a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और ऑन दिस साइड वी हैव 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आप एक काम करो इस पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जैसे 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 15 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 13। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं सोल्व, 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 माइनस 4 5d, 25 माइनस 30, 25 माइनस 30 ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 का इधर डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट d इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स अपने पास किसकी वैल्यू आ गई d की वैल्यू आ गई। ओके, अब जो ये d की वैल्यू आई है वो आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो a की। देखो a एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है अपने पास -1, सो आई विल राइट हियर -1 इट इज इक्वल टू 15। 2 इंटू -1 या प्लस माइनस -2 सेट जाएगा, तो 15 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास है ना a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। वी हैव बोथ वैल्यूज, वी हैव वैल्यू a एंड द वैल्यू d। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा इसके अंदर a10 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स a10 an का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड। अब a10 आप फाइंड कर सकते हो, a10 10 का मतलब हो गया n की वैल्यू, अब आप क्या रखोगे 10 रखोगे ऐसे, और उसके बाद a और d, a की वैल्यू क्या है 17, तो यहाँ आप 17 लिखोगे, d की वैल्यू क्या है -1, सो हियर यू विल राइट -1 और इसको सोल्व कर देना, a10 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। Okay students, next question is question number 5. Fifth question is d is equal to 5, s9 is equal to 75, find a and a9. d is equal to 5, s9 is equal to 75, find a and a9. So here students we have s9 is equal to 75, sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 d. It is the formula to find the sum of nth terms. Sn, here you can see the value of n is 9, so I will write here 9.
9/2 टू ए इसकी वैल्यू है नहीं अपने पास, एन की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू कितनी है 5, S9 it is given to 75, so I can write here 75 9/2 2a plus 8 into 5. So students you can see it here 8 into 5, 8 5 जा 40. अच्छा 2 ये डिवाइड में है तो ये 2 आपका इधर चला जाएगा, तो 2 किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 75 into 2, 75 को 2 से क्या कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई, सो हियर आई विल गेट 150. और स्टूडेंट्स ये जो 9 है ये है आपका यहाँ मल्टीप्लाई में, 9 किस में मल्टीप्लाई में, तो इस 9 को क्या करें इस 9 का, अच्छा अपने को तो ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस 9 मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको आप यहाँ से हटा के डिवाइड में लेके आ जाओ, और फिर ये प्लस का 40 है, ये तो बचा अपने पास और 2 है बचा, प्लस 40 इधर आगे क्या हो जाएगा -40, इस तरीके से एलसीएम क्या आएगा 9 हियर 150 माइनस 360. तो स्टूडेंट्स आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, 360 में से आप 150 माइनस करोगे, सो हियर यू विल गेट 0 6 minus 5 1 3 minus 1 2, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का, अपॉन में क्या है 9, इट इज द वैल्यू ऑफ 2a, ये किसकी वैल्यू आ गई 2a की वैल्यू आ गई. चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो 3 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है 3 बार, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 70, यानी माइनस का 70/3 बचेगा. अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा इधर डिवाइड में, फिर 2 से इसको भी कैंसिल कर देना, तो 70/2 इट विल बी 35. तो स्टूडेंट्स ए की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आएगी -35/3, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू. स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जैसे अपन पढ़ा रहे होते हैं या फिर अपन पढ़ रहे होते हैं, हो सकता है कई बार क्वेश्चन मैंने कोई गलत लिख लिया हो, इट में भी पॉसिबल कई बार क्या कैलकुलेशन अपन मल्टीप्लिकेशन है जल्दीबाजी में हो सकता है कि वो अपन ने गलत कर लिया हो, तो ये जो चीज़ है ये आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. तो अगर कहीं कोई मिस्टेक हो, कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो यू हैव टू टेल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को बता सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई ए की. अब आपको क्या पूछा इसमें इन दिस क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अस A9, तो स्टूडेंट्स AN इज इक्वल टू क्या आपके पास A प्लस n-1D. देखो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए अब 9, सो 9 ए की वैल्यू -35/3 प्लस n-1 यानी कि 9-1, डी की वैल्यू 5, ये इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन. इसको सॉल्व कर लो और आंसर आपका आ जाएगा. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5th, ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5th था. नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A is equal to 12, D is equal to 8, Sn is equal to 90,
फाइंड एन एंड एन। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को तो आप लोग सेल्फ कर सकते हो। एस एन वगैरह सारी चीजें दे रखी है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। तो आप एन की सॉरी स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये आप लोग सेल्फ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आप लोग सेल्फ करोगे, 7th भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, फाइंड एन एंड ए, ये भी आप कर लोगे। 9th वाला क्वेश्चन भी आपको सेल्फ करना है। 10th वाला थोड़ा सा लगे भी देख लेते हैं। L is equal to 28, S is equal to 144, N it is equal to A, N है वो आप पे A की इक्वल है, फाइंड A। दिस इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट इसमें आपको L यानी कि लास्ट टर्म आपको दे रखी है। लास्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है? 28, और सम है उन सब का, वो दे रखा आपको 144। लास्ट टर्म का मतलब ये किसकी वैल्यू है? ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 28, ठीक है। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 28, सो यू कैन राइट हियर 28 ए प्लस एन माइनस 1 डी। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, छोड़ो इसको। एस यानी सम जो है वो है आपका 144। सो स्टूडेंट्स एस एन की वैल्यू क्या है? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन इट इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a को अपन लिख सकते हैं a प्लस ए, और ये a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये किसके इक्वल है? 28 के। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? 28 a प्लस 28। अच्छा, ये एस एन जो है, ये सम जो है वो कितना दे रखा आपको? 144। सो हियर आई कैन राइट 144। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में अपने को साथ में ये भी दे रखा है एन इट इज इक्वल टू ए, यानी आप एन की जगह क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। यू कैन राइट ए एट द प्लेस ऑफ एन, यानी कि एन के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो? ए पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ए पुट कर सकते हो। तो 144 ए अपॉन 2 ए प्लस 28। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 का इधर मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 2 ए प्लस 28। ए का मल्टीप्लाई करो। आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी हैव ए स्क्वायर प्लस 28 ए स्क्वायर प्लस 28 ए माइनस 208। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेंड्स, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यू नो दिस वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग आगे आप सेल्फ कर लेना। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ये इसके ना थर्ड जो क्वेश्चन है, इसके टोटल 10 पार्ट्स है। हाउ मेनी पार्ट्स? देयर आर 10 पार्ट्स एंड वी हैव डन 10 पार्ट्स। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Fourth question is how many terms of AP? How many terms
How many terms of NAP? How many terms of NAP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of to give a sum of 636. This is the question. How many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? Sum of 636, ये जो है ये सम अपने को चाहिए. इन सम जो है वो अपने पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? 636. ये आपका सम आना चाहिए. एंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी इस एपी की कितनी टर्म्स, इसके बारे में अपने को क्या करनी है स्टूडेंट्स? बात करनी है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. So answer it will be students. सबसे पहले अपन लिखते हैं कि एपी कौन सी अपने पास. ये है 9, 17, 25. इस तरीके से ए फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 9. डी 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 8. ओके, ये दो चीजें ए और डी, दो चीजें अपने को मिल चुकी है. एंड नाउ मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ. ओके, सम कितना दे रखा आपको? एस एन कितना दे रखा है? 636. ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टर्म्स का अपने को पूछा है. तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हो गया कि अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है. किसके वैल्यू फाइंड करनी है? एन की वैल्यू. स्मॉल एन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो अपने को क्या करनी है? फाइंड करनी है. तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1 डी. एस एन कितना है? 636. तो 636 एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो एन की जगह आप क्या लिखोगे? एन लिखोगे. एन अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? द वैल्यू ऑफ डी इज 8. ठीक है, इस 2 का आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ये आएगा आपके पास 1272. यहाँ आपके पास बचेगा n 18 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 8 का n से करेंगे तो 8n माइनस में क्या आ जाएगा? 8. 18 में से 8 क्या कर सकते हैं अपन? माइनस. सो हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 1272. It is equal to n. 18 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 10 प्लस में बचेगा 8n. n का अंदर क्या कर दो? मल्टीप्लाई. 10n प्लस 8n का स्क्वायर. तो इक्वेशन बनेगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 1272 0. 2 आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स? कॉमन. तो आपके पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर 5n माइनस 636. ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 0 के अपॉन में, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 0. सो फाइनल क्वेश्चन इक्वेशन आपकी ये बचेगी. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू नो दिस वेरी वेल. हाउ कैन वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सेल्फ ही सोल्व करनी है. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है.
Question number 5. Question number 5 is the first term of AP is 5. The first term of an AP is 5. The first term of an AP is 5. The last term is 45. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the D. Find the number of terms and D. ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करनी है। तो एक तो इसमें आपको दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है इट इज इक्वल टू 5. सो आई विल राइट हियर फर्स्ट टर्म ए की जो वैल्यू स्टूडेंट्स ये कितनी दे रखी है आपको 5 दे रखी है। अच्छा ए की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, लास्ट टर्म 45 है, यानी कि nth टर्म मान लो और वो कितनी है 45, यानी एल लिख दो चाहे एन लिख दो एक ही बात है। सम जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 400। ठीक है, अब इसी से अपने को काम चलाना पड़ेगा और इसके अलावा अपने पास और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन सी दैट ए एन जो है वो है आपका 45, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 45. सो आई कैन राइट हियर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ये होगा आपका ए एन का फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू आपके पास है 45, ए की वैल्यू दे रखी है 5, एन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ना ही आपके पास है डी। डी भी आपको फाइंड करना है एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको एक बार इतने रखो, इसको मेरे साथ इसका कोई यूज तो नहीं है। एक बार को एक सेकंड, इसको स्टूडेंट्स आप एक बार इतना ही रखो। जैसे ए एन है, ए एन की वैल्यू क्या 45, तो 45 लिखो इसको एक बार, बस इतना ही काफी है। एस एन वाले फॉर्मूले पे चलो। एस एन इक्वल टू एन माइनस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. एस एन इट इज इक्वल टू 400 एन अपॉन 2. अच्छा 2a को आप क्या लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 डी. ये आपका ए एन ही तो होता है यहाँ पे, और ए एन किसके इक्वल, ये किसके इक्वल दे रखा है 45 की. सो आई कैन राइट हियर 45. देखो इस ए की जगह तो अपन क्या रख देंगे, ए की वैल्यू 5 प्लस ये जो है ना ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये किसके इक्वल है 45 की. 45 और 5 कितना हो जाएगा 50. अब स्टूडेंट्स आपको इसको सोल्व करना है। देखो 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा 25, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 400 इट इज इक्वल टू एन इंटू 25 मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें आ जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड करना तो आप लोगों को आता है, कर लेना इसको। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
Question number 6. The first and the last term of an AP. The first and last term of an AP are 17 and 350. Are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, if the common difference is 9, how many terms are there? How many terms are there? How many terms are there? And what is their sum? And what is their sum? This is the question, students. The first and the last term of an AP are 17 and 350. यानी कि फर्स्ट टर्म भी आपको दे रखी है और लास्ट जो टर्म है वो भी क्या आपको गिवन है. फर्स्ट टर्म है आपकी 17, लास्ट टर्म जो है वो है आपकी 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d की वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी आपको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड व्हाट इज देयर सम, और फिर उसका आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि आपको बताना है कि टोटल टर्म्स कितने होंगे. तो वो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d. an 350, a 17, n माइनस 1, n की वैल्यू है नहीं आपके पास, d की वैल्यू कितनी है 9. चलो इसको सोल्व करो. 350 में से 70 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 3 और 47. 7 माइनस करोगे 40 में से तो ये आपके पास है 333. ठीक है, ये राइट है. और इक्वल में आपके पास क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू बचेगा 9 का आप इधर ले आओ. 333 अपॉन 9, ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 1. एक मिनट. फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP. फर्स्ट टर्म आपकी 17 है, ठीक है, एक ही जगह 17 लिखा आपने. एंड लास्ट टर्म है आपका 350, तो इसकी जगह आ गया आपका 350. ठीक है, राइट है. अब आप है ना इसको कैंसिल करो. देखो कैंसिल हो रहा है क्या. 9 में 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 3 27, 27 3 वो बच जाएंगे 3 6 7 टाइम्स 37 टाइम्स. माइनस 1 को इधर लियो. सो स्टूडेंट्स n की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 38. नाउ वी व्हाट इज देयर सम. अब आपको सम बताना है, तो सम का जो फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 d. Sn तो आपको फाइंड करना ही. n की जगह लिख लो भी. n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 38. सो हियर आई विल राइट 38 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n माइनस 1, यानी कि 17 माइनस 1. सॉरी n की वैल्यू आपकी 38 है, तो 38 माइनस 1 d की वैल्यू आपको क्या देंगे 9.
स्टूडेंट्स इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे आपके पास SN की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट all 6th question of the exercise 5.3 and send me PDF file. Some students are not sending a PDF file of homework, so please send homework PDF file on my WhatsApp number. Thank you, have a nice day.